Welcome to VLearn. This is session number 15 of Business Intelligence and Tools. In this session, we are going to cover following topics: planning to implement a BI solution, limitation of BI, that is business intelligence, BI usage, organization culture, types of organization culture, factors that affect TCO. First of all, planning to implement the business intelligence solution, that is BI solution. The planning to implement the BI solution is more than implementing a technologies and tools which are related to that particular solution. So it has to be ensured that the system give the necessary results. At the same time, it is be able to refresh all the real-time data marts. So planning to implement a business intelligence in a company can have or may have the graphic visualize, so that overall view of the desired function can be obtained. ग्राफिक विजुअल मीन्स जितना भी आप BI को ये रिप्रेजेंट कर रहा है मुझे वो BI सॉल्यूशन, मैंने उसको एक ग्राफिकल व्यू प्रोवाइड कर दिया जस्ट कि मुझे ओवरऑल व्यू मिल सके कि कैसे कैसे डिजायर्ड फंक्शंस हम उससे ऑब्टेन कर सकते हैं. Analytical dashboards have now become a necessity and can also supplement the statistical as well as the numerical information. The real-time information which is obtained through the BI system should be delivered to almost any place. In the market, there are several gadgets which will route exception alerts and the dashboard report to your web-enabled devices like your PDAs. PDAs आपके कैसे devices हैं जिसके अंदर इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, एनालाइज होती है, अगर आपको कोई एक्सेप्शन रेज होता है तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको एक्सेप्शंस अलर्ट भी प्रोवाइड करता है. So, decision making discussions will tell the information companies to what need to be collected, analyzed and that to published in your BI system. In a planning phase, there are 7 steps which we need to follow while rolling out the BI solution. In this, the first is make sure that the data is clean. दैट इज़ जो डाटा आप यूज़ करने जा रहे हैं वो क्लीन होना चाहिए, मीन्स ईजी टू यूज़ होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी एटॉमिक एंड क्लीन. देन ट्रेन द यूज़र्स इफेक्टिवली. वो यूज़र्स जो उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को यूज़ करने वाले हैं उन्हें ट्रेन करना उस पर्टिकुलर BI सॉल्यूशन के हिसाब से ताकि वो उसे ईजीली यूज़ कर सकें और बेनिफिट्स यूटिलाइज कर सकें. देन नेक्स्ट इज क्विकली डिप्लॉय एंड एडजस्ट while progressing. Huge amount of time up front developing the perfect report should not be spent because the needs evolve as the business evolves. जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है वैसे वैसे नीड्स भी रेज होती हैं. तो हम ये नहीं सोच सकते कि बस हमें इतना ही काम करना है तो हम उसी की टाइम फ्रेम में या उससे थोड़ा ज़्यादा भी टाइम लग गया देन इट डजेंट मैटर, बिकॉज जो बिजनेस जो है वो करंटली अभी किस स्टेट पे है, नेक्स्ट स्टेट पे मुझे उसे थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सटेंड करना है. सो अकॉर्डिंग टू दैट आपके सॉल्यूशंस भी एक्सटेंड होंगे. सो इजीली डिप्लॉय और क्विकली डिप्लॉय करो और साथ साथ उसे ऐसा बनाओ कि जो अगर कोई नई सिचुएशन या नई कोई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है तो इट मस्ट बी एडजस्टेबल और इजीली हैंडल्ड. नेक्स्ट इज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच दैट शुड बी कंसीडर्ड while बिल्डिंग द डाटा warehouse फ्रॉम द स्टार्टिंग. Then the ROI, that is return on investment, should be clearly defined before starting. The specific benefits that have to be achieved should be outlined and then a reality check has to be done every 6 months so that you must be notified कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया है और मुझे इतना रिटर्न उससे मिला है. इनके अंदर और भी कंडीशंस हो सकती हैं लाइक आपके अगर स्टेप्स के अंदर है तो देयर शुड बी फोकस ऑन योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव. मेन फोकस हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव पे ही होना चाहिए. Then the business intelligence software should not be bought just because they are in need. इसलिए नहीं कि हमें उसकी नीड थी इसलिए मैंने उसे बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर को जस्ट खरीद लिया. हमने उसे इसलिए बाय किया कि उसके अंदर जो मुझे डिप्लॉय करना था उससे मैं बिल्कुल रफली समझ पाई कि मुझे पर्टिकुलर अगर ये प्रॉब्लम फेस हो जाती है तो मुझे कैसे उसको हैंडल करना है. सो दीज आर सर्टेन स्टेप्स व्हेन वी आर रोलिंग आउट आवर BI solutions. There are certain limitations of business intelligence also. Data warehouse that the BI system attached to generally do not contain all the necessary data which they need to generate the revenue from the existing company data. So BI system जो आपका data warehouse से currently attached है
ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर वो सारा डाटा आपको मिल जाए जिससे कि आप ये डिसाइड कर पाएँ कि कंपनी आपका इस टाइम पे कितना रेवेन्यू बना रही है. So the data present in the data warehouse may not be right format in the sales, and moreover the relationship in the data warehouse may not be optimized for the revenue generating process also. So the data warehouse usually do not store the old data to allow the formation of the trended information. जबकि जब भी हम कभी प्रॉफिट्स के ऊपर एनालाइज करते हैं तो हमें हिस्टोरिकल डाटा और करंट डाटा दोनों को एनालाइज करना होता है कि हिस्टोरिकल मूवमेंट में हमने कैसे कितना इन्वेस्ट किया था जिससे मुझे अब कितना इंटरेस्ट मुझे मिला है. सो द क्वेरीज सॉल्व आउट ऑफ द BI सिस्टम कैन बी बर्डनसम एंड टाइम कंज्यूमिंग फॉर द एंड यूजर्स बिकॉज उसके अंदर उसे सारी क्वेरीज लगानी पड़ेंगी जस्ट टू गेट द करेक्ट आंसर. इफ आई टेक एग्जाम्पल ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट तो IT डिपार्टमेंट जो है उसके पास डाटा वही होगा जो डाटा वेयर हाउस पे है, या फिर वो डाटा सिर्फ वही एक्सेस कर सकते हैं जो एक्सपर्ट्स एक्सेस करना चाहते हैं. सो जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको कोई यूज़ नहीं कर सकता उस BI टूल्स को. तो अगर वो यूज़ ही नहीं कर पाएगा तो कैसे इजीली वो अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर पाएगा. सो दीज आर सर्टेन लिमिटेशंस विच आर लिंक्ड विद योर BI, दैट इज बिजनेस इंटेलिजेंस. नाउ द BI यूसेज. BI can remove a lot of guesswork within the organization, and on the same side it enhances the communication among the departments while coordinating the activities. So जो BI है वो इस गेस वर्क को रिमूव करता है कि उस डिपार्टमेंट में क्या वर्क हो रहा होगा या फिर पर्टिकुलर हमने जो वर्क किया है उसका दूसरे डिपार्टमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. इसको रिमूव करने के लिए उसे कम्युनिकेशन को एनहांस करना होता है जिससे कि कोऑर्डिनेशन बनता है उन दोनों डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ में. BI can enhance the overall performance of the company by using it. BI expendities the decision making means जो भी डिसीजन आप लेना चाहते हैं वो नॉर्मली डिपेंड करता है आपके BI पे, दैट इज बिजनेस इंटेलिजेंस. देन द BI कैन इम्प्रूव द कस्टमर एक्सपीरियंस ऑल्सो. सो दीज आर सम यूसेज ऑफ BI. In the list we next have, there are certain numbers or we can recognize, a firm can recognize the importance of a BI for masses. क्यों हमें particularly BI ही यूज़ करना चाहिए अगर हम बहुत लार्ज डाटा में डील कर रहे हैं. तो there are certain points. In this we first have analyzing the click stream data to improve the e-commerce plan. click stream मतलब एक क्लिक के ऊपर सारा डाटा आपको मिल जाए या फिर आप कोई भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकें just on a click. Next is quickly detecting the warranty related problems to minimize the impact of your project design deficiency. Then discovering the money laundering criminal activities, analyzing the clinical tests for experimental drugs, minimizing the equipment's downtime by applying the predictive maintenance, identifying and preventing the fraudulent activities, converting the business knowledge through the analytical intelligence, and recognizing the loyalty of the firm's most profitability customers as well as the future customer, which can be done with the help of this BI, that is business intelligence. बिजनेस ऑपरेशन रिपोर्टिंग. अब जो बिजनेस इंटेलिजेंस यूसेज है मुझे उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना है बिकॉज कुछ सर्टेन एरिया होता है किस एरिया के अंदर आप BI टूल्स को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं. सो इन एंड ऑल वी हैव 6 एरियाज एंड इन दिस वी हैव बिजनेस ऑपरेशन रिपोर्टिंग फर्स्ट. सो द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस इज द बिजनेस ऑपरेशन रिपोर्टिंग as it includes the actual and how the actual stack up against the aims. This type of BI often manifests itself in a regular, weekly or monthly reports that have to be produced. Forecasting is both a science as well as the art. हम इसे आर्ट इसलिए कहते हैं बिकॉज हमें फ्यूचर नहीं पता. आर्ट इज जस्ट रिलेटेड टू करंटली और पास्ट. तो फ्यूचर ना पता होने से हम फोरकास्टिंग को एक आर्ट की तरह भी कंसीडर कर सकते हैं. और इसलिए साइंस क्योंकि इसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म होते रहते हैं. नेक्स्ट कैटेगरी इज डैशबोर्ड. द मेन यूज ऑफ डैशबोर्ड इज टू कम्युनिकेट द डाटा एट अ ग्लिम्स. एक ही झलक में मुझे पूरा डाटा देखना है कि किस डाटा से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं और कौन सा डाटा एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है. सो दिस पर्टिकुलर टास्क कैन बी डन बाय यूजिंग योर डैशबोर्ड्स.
For this, there is a little necessity for drilling down the data. Next is multidimensional analysis. The multidimensional analysis refers to the slicing and dicing of data. It gives a good insight into the numbers at the more granular level, which particularly requires a solid data warehouse. Next area is finding correlation among various factors. So there is going on very deep into the BI. We have the questions like how the different factors are associated to one and another. So इन क्वेश्चन से डील करना है तो हम पर्टिकुलर इस एरिया को रिकमेंड करते हैं जहाँ पे हम कोरिलेशन फाइंड करते हैं जितने भी बिजनेस फैक्टर्स अवेलेबल हैं आपके बीआई सॉल्यूशन में. नेक्स्ट इज बीआई. बीआई इज जस्ट एन आईटी प्लेटफॉर्म or we can say that it is an IT tool which can be used to gather, give access to and analyze the data about the organization operations as well as its activities. So particularly जहाँ पे प्लेटफॉर्म वर्क आ गया तो प्लेटफॉर्म मीन्स आपने एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन की जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको एक स्टैक के अंदर रिप्रेजेंट किया है और नाम सिर्फ एक टेक्नोलॉजी से दे दिया जो कि उस पूरी टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है. सो वो जो आपने प्लेटफॉर्म आईटी प्लेटफॉर्म दिया अल्टीमेटली वो एक स्टैक है जिसके अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं जिनको कंबाइन करके आप एक आईटी प्लेटफॉर्म कहते हैं जो कि एक बीआई है, दैट इज योर बिजनेस इंटेलिजेंस. In this particular stack, in and all, we have 6 levels. First of all, infrastructure. It is the organization server, operating system, workstation and your network. जब भी आप इनके रिगार्डिंग बात करते हैं तो देन यू आर टॉकिंग अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ द बेस स्टैक ऑफ दैट प्लेटफॉर्म. देन इज डाटा एक्विजिशन. द मेन ट्रांजेक्शन सिस्टम्स फॉर एन एग्जाम्पल पेरोल अकाउंट्स, रिसीवेबल्स, outpatient registration, your electronic health records. These are certain sources of data which are used by BI analysis software to just implement their analysis phase. Next level we have data integration level. The software is used to extract the data from the source system, clean the data and ultimately link the data from the different systems. different systems से डाटा को आपने extract कर लिया उसके बाद ultimately आपको उसे इंटीग्रेट करना है. देन कम्स द डाटा एग्रीगेशन एंड द स्टोरेज. द रिपोजिटरी ऑफ डाटा दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द डाटा इंटीग्रेशन फेज विच कैन कीप बोथ द कंप्लीट डाटा एंड द डाटा समरीज. डाटा इंटीग्रेशन फेज में आपने अलग अलग फेज से डाटा को एक्सट्रैक्ट करके एक जगह पुट ऑन कर दिया है बट अल्टीमेटली जो आपने उसे एग्रीगेट करना है और स्टोर करना है उस टाइम पे हम ये डिटरमाइन करते हैं कि हमारे डाटा की समरी क्या होनी चाहिए और हमारा कंप्लीट डाटा कितना है. Then comes the data analyze phase. The analytical software is used to query the repository, run reports and also to perform data modeling and what if scenario which is often called as BI for some software vendors. Last level is portal. This particular is the interface which is used by the managers and your IT analyst to work with the BI stack because portal के through ही आप अपने BI stack से interact कर सकते हैं. So these are the levels which are contained in your stack. Now is your organization culture. The collective behavior of humans that are the part of an organization is termed as organization culture. Means जितने भी persons organization का part हैं वो कैसे behave कर रहे हैं उस पर depend करता है कि आपका organization का culture क्या है. Or we can say that it is also formed by the organization values, vision, norms, working language, systems and the symbols. Or we can include belief and habits also in this organization culture. Culture एक वे होता है जिसके अकॉर्डिंग आप हम ये कहते हैं कि हम उस कल्चर के अकॉर्डिंग ही प्रिसीव कर रहे हैं. सो एक ऑर्गेनाइजेशन में उसकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं, कुछ मिशन विजन्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का पार्ट बन जाते हैं. Then it is also the pattern of such collective behaviors and assumptions that are taught to any new organizational members as a way to perceive or even thinking and feeling. जो आपका ये organization culture है जो ultimately depend करता है आपके behavior पे, assumptions पे, उसके according हमारी thinking और feeling वो भी reflect करती है कि हम किस organization culture को belong करते हैं. Organization culture affect the way the persons and the groups interact with each other, with clients and with the stakeholders. Organizational culture मतलब
एक ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट में आपके वो मेंबर्स भी आते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के, और अल्टीमेटली जो क्लाइंट्स हैं। तो आपस में वो सब कैसे कम्युनिकेट करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, अल्टीमेटली आपका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है उस पर्टिकुलर इंटरेक्शन को टोटली अफेक्ट करता है। The organization culture refers to the culture in any type of organization. Organization can be your school, universities, non-profit groups, government agencies or your business entities. इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होता है जिसको वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है। अल्टीमेटली अगर आप बिजनेस की बात करें तो वी हैव द कॉर्पोरेट कल्चर और अ कंपनी कल्चर ऑल्सो, विच इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर डिफरेंट है और आपका कॉर्पोरेट कल्चर बिल्कुल डिफरेंट होता है, बिकॉज कॉर्पोरेट कल्चर जो है इट इज द सम ऑफ योर वैल्यूज, द कस्टम्स, ट्रेडिशंस and the meanings that will make a company different. Now there are certain types of organization culture. In this list we first have normative culture. In this the norms and procedures of the organization are predefined and the rules and regulations are set as per the existing guidelines. Next, in this the employees behave in an ideal way and strictly to the policies of the organization. सो नॉर्मली अगर आप नॉर्मेटिव कल्चर को बिलोंग करते हैं तो आप उस टाइप के एम्प्लॉयज़ हैं जिसके अंदर मुझे जो पॉलिसीज़ कंपनी ने दे दी हैं मैं डायरेक्टली उसी स्ट्रिक्टली उस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं। कोई भी उसे ब्रेक नहीं करता, जितने भी रूल्स बने हैं हमें उसे जस्ट फॉलो करना है। दैट इज़ द पार्ट ऑफ योर नॉर्मेटिव कल्चर। नेक्स्ट टाइप इज़ प्रैग्मेटिव कल्चर। इन दिस द स्ट्रेस इज लेड ऑन सेटिस्फाइंग द विश ऑफ द क्लाइंट्स ओनली। इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हमारा जो क्लाइंट है वो ही वर्चुअली डिफाइन किया जाता है, हमें अल्टीमेटली उसी को ही सेटिस्फाई करना है जितनी भी एक्टिविटीज आप परफॉर्म कर रहे हैं, जस्ट टू मेक योर कस्टमर हैप्पी और क्लाइंट हैप्पी। देन इज academic culture. In this kind of culture, employees are highly skilled and the organization provides an environment for the development as well as your employment skills also. In this we particular have the example of hospitals, universities and the large corporations. ये कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका अपना एक कल्चर होता है डिपेंडिंग कि वो कैसे अपनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ में लेके आ रहे हैं और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी स्किल्स क्या हैं। Then is fortress culture. Employees are not sure if the will be paid, laid off or not by the organization. In this we have certain examples like your loans and savings. This particular is considered in fortress culture. Next is collaborate work culture. In this type of culture, an organization adopts a collaborate culture which offers a congenial and amiable environment to work in. The organization consists of superiors who provide more of the guidance and the less of governance. Means collaborative work करना, एक साथ मिल के वर्क करना। तो इसके अंदर मोर और लेस जो सुपीरियर्स हैं वो गवर्न नहीं करते, रादर गाइड करते हैं अपने जूनियर्स को, जिससे कि वो आप आगे ऑर्गेनाइजेशन के वर्क में ग्रो कर सकें, अपना वर्क इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकें। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। इन दिस लिस्ट वी नेक्स्ट हैव प्रोसेस कल्चर. In such a culture, the process and procedures of the organization are fixed. There are certain feedback, performance reviews which do not matter in such organizations. जो हमने प्रोसीजर या प्रोसेस फॉलो करना है अल्टीमेटली स्टार्टिंग से एंड तक हम वो ही फॉलो अप करते रहेंगे। फीडबैक्स और परफॉर्मेंस रिव्यूज़ का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। मोरओवर जितने भी आपके जो अगर एग्जाम्पल हैं तो जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो यही कल्चर फॉलो करती हैं। दैट इज़ योर प्रोसेस कल्चर। मीन्स जो डिफाइन कर दिया अल्टीमेटली उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमें फॉलो अप करना है, रादर देन कि फीडबैक और परफॉर्मेंस रिव्यू को देख के हम उस प्रोसेस को चेंज करें। नाउ देयर आर सर्टेन फैक्टर्स रिलेटेड टू योर TCO. TCO मीन्स टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप। टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप जो है उसको सर्टेन फैक्टर्स डिफाइन करते हैं। तो जो ये टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप है नॉर्मली हम डील कर रहे हैं BI पे, दैट इज़ योर बिजनेस इंटेलिजेंस। सो इसके अंदर हमारे पास जो फैक्टर्स हैं उसमें फर्स्ट फैक्टर है आपका कॉस्ट ऑफ योर हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर। सो नॉर्मली हम ये कहते हैं कि जो हमारे हार्डवेयर कॉस्ट है, सॉफ्टवेयर कॉस्ट है, हमें सबसे पहले उसको कंसीडर करना चाहिए जब हम ये डिटरमाइन कर रहे हैं कि अल्टीमेटली टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप कितनी होने वाली है। So
इन दिस जैसे हम कोई भी प्रोसेसर बाय कर रहे हैं, मल्टीपल सर्वर्स को लाइसेंस दे रहे हैं, तो उस केस में हमारी कॉस्ट फैक्टर राइज होता है. तो जब हमें सिग्निफिकेंट रिड्यूस करना है अपना एक्सपेंस रिलेटेड टू आवर BI स्ट्रेटजीज, द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट इंक्रीज देयर ROI, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, with a cost effective solutions that scales up to meet the growing demands for the particular information. Next we have software functionality. Software functionality, the enterprise has many type of users. In this there are some casual users, sophisticated user, analyst user, that we call them power users. Sophisticated users वो users होते हैं जिन्हें बनाना है अपनी खुद की रिपोर्ट. Analyze user who drill down to do their OLAP function. और casual तो casual just interact कर रहे हैं. सो इन यूजर्स पे डिपेंड करता है कि जो TCO है वो कैसी सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी आपको प्रोवाइड करें. देन नेक्स्ट फैक्टर इज software architecture and scalabilities. The vendors that gives the significantly less software prices and is also good with the hardware specification should be located. To make sure of best performance, the BI solution will have to use the internet as a vehicle to drive data and to and from all the levels of users. हर लेवल के यूज़र के साथ हमें इंटरेक्ट करना है जिससे कि हम उस इंफॉर्मेशन को दे सकें और उनसे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकें. सो दिस इज़ योर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड स्केलेबिलिटी. कितना डाटा आप उस सॉफ्टवेयर के अंदर मेंटेन कर रहे हैं और अल्टीमेटली उसका स्ट्रक्चर क्या है. नेक्स्ट इज टाइम टू इम्प्लीमेंट. द डेवलपर रिसोर्सेज आर वेरी एक्सपेंसिव and the users will have to immediately access the information. Hence, the developers need flexible tools to quickly build and deploy the complicated BI applications throughout the enterprise, which can meet different user preferences for greater ease of use as well as your maximum productivity. In the list we have next is user training. Ultimately जिस यूज़र को उसे यूज़ करना है हमें उसे भी ट्रेन करना होता है ताकि वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन को करेक्ट मोमेंट ऑफ टाइम में एक्सेस कर सके और अपना कोई भी वर्क परफॉर्म कर सके. देन वी हैव सपोर्ट एंड मेंटेनेंस फेज. मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट वेयर द वैल्यूएबल IT टैलेंट कैन हैंडल एवरी सिंपल यूजर रिक्वेस्ट एंड विच विल इंक्रीज द TCO, मीन्स टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप. तो उसको अगर मुझे रेज करना है तो मुझे उसे एक इफेक्टिव मेंटेनेंस प्रोवाइड करनी होगी, दैट टू सपोर्ट के साथ. नेक्स्ट लेवल इज डाटा आर्किटेक्चर. डाटा आर्किटेक्चर मीन्स कैसे आपने उस डाटा को स्टोर कर रखा है. मिनिमम से मिनिमम अगर आप सिंपली इसे सॉल्व करते हैं तो बहुत इजी हो जाता है ये मैच करना कि कैसे मुझे सर्वर रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है जस्ट टू मेक दैम इंटर ऑपरेटेबल. मीन्स एक को दूसरे के साथ ऑपरेट करना है तो वो कैसे इजीली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उस चीज़ का ध्यान रखा जाता है इस डाटा आर्किटेक्चर फैक्टर्स में. सो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द TCO, दैट इज टोटल कॉस्ट ऑफ ownership. Do it yourself. First, what are the limitations of BI solutions? Means business intelligence solutions की क्या क्या limitations हैं वो describe करनी है. And secondly, you need to define the organization culture. Thank you. Happy learning. Be learning.